Introducing Educami's GS Main Support Program and Test Series with Structured Mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect. 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Hello everyone, welcome to Educami, and today we are going to see our UPSC CSE Masterclass program for prelims and mains. Now today we are going to solve some prelims related question that is based on economy. So first we will read out the question for you. What you need to do is to try and attempt this question on your own, and then we will see the right answer and also the information that was required to answer that question. तो चलिए करते हैं start. The first question is, consider the following statements about RTGS, real time gross settlement. First statement है RTGS is a 24/7 system. The second statement is the minimum amount to be remitted through RTGS is rupees 2 lakh with no upper or maximum ceiling. The third is RTGS is managed by National Payment Corporation of India NPCI. आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, is or are correct regarding RTGS. The options given are similar to what you saw in UPSC Prelims 2023. इसी तरह के ऑप्शंस फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे, तो हम लोग भी डेली इसी तरह के ऑप्शंस को प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम आते आते तक हम लोग इसमें काफी कंफर्टेबल हो जाएं। पहला ऑप्शन है आपका ओनली 1, सेकंड स्टेटमेंट इज ओनली 2, थर्ड ऑप्शन इज ऑल 3 ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, और ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अच्छे से सोचिए, यू हैव रेड अबाउट आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस इन बैंकिंग, तो इसके बारे में आपने पढ़ रखा है, तो जल्दी से बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है ओनली 1. The only correct statement here is the minimum amount to be remitted through RTGS is rupees 2 lakh with no upper or maximum ceiling. इसके अलावा RTGS is a 24/7 system is not correct. ये 24/7 सिस्टम नहीं है, और RTGS is managed by RBI and not NPCI. तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। थोड़ा सा जान लेते हैं RTGS के बारे में। देखिए RTGS का क्या हुआ, फुल फॉर्म आपने देखा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मानिए 2 बैंक है, एक है एक्सिस बैंक, एक है ICICI बैंक। अब किसी पर्सन ने एक्सिस बैंक से ICICI में कुछ पैसा भेजा, अब किसी तीसरे पर्सन ने ICICI से कुछ जो है आपका पैसा एक्सिस बैंक में भेजा। अब दिन भर में इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिटवीन एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक। तो अगर आप पूरे दिन का अगर आप नेट सेटलमेंट निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरली दिस सिस्टम वर्क्स इन नेफ्ट। ठीक है, जब आपका जो है पूरे एक दिन का आप देखते हैं कि हमारे बीच में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और नेट क्या निकलता है। हो सकता है कि कुछ पैसा एक्सिस बैंक को ICICI को देना पड़े, या हो सकता है कि कुछ पैसा ICICI को है जो एक्सिस को देना पड़े। ठीक है, जो भी नेट निकलेगा तो उस तरह के सेटलमेंट को हम लोग नेफ्ट बोलते हैं। लेकिन RTGS क्या होता है, रियल टाइम से आप समझ रहे हैं। रियल टाइम क्या हुआ कि अभी जैसे मैंने ट्रांजैक्शन किया एक्सिस बैंक से ICICI बैंक की तरफ, तो ये इसी टाइम सेटलमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि ये नेट सेटलमेंट होगा। इसी कारण इसमें बोला जाता है कि ट्रांजैक्शंस इंडिविजुअली सेटल किए जाते हैं विदाउट नेटिंग। नेटिंग का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग जो नेफ्ट के केस में करते हैं, ठीक है, नेफ्ट में क्या होता है, वे ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड इन बैचेस अंटिल अ स्पेसिफिक टाइम। RTGS प्रोसेसेस ट्रांजैक्शन कंटिन्यूअसली ऑन अ ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस ड्यूरिंग RTGS बिजनेस आवर्स। तो इसी कारण जो है ये डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम नेफ्ट। अगर आप देखेंगे तो बैंक कैन एक्सेस द RTGS सर्विस विंडो फॉर कस्टमर ट्रांजैक्शंस बिटवीन 8 AM to 4:30 PM ऑन अ वर्किंग डे फॉर सेटलमेंट एट RBI एंड थ्रू इंडिविजुअल बैंक, टाइमिंग में वैरी। तो यहां पर आप देख रहे हैं अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि यहां पर मिनिमम रेमिटेंस जो होना चाहिए वो 2 लाख रुपए होना चाहिए विदाउट एनी अपर और मैक्सिमम लिमिट। इसके अलावा अगर आप जो कुछ डिफरेंस समझना चाहते हैं तो एक है कि इनको मॉनिटरिंग कौन करता है, तो नेफ्ट एंड RTGS आर मॉनिटर्ड बाय RBI, वेयर IMPS सिस्टम जो वर्क करता है, आपको पता है IMPS, आप इसका फुल फॉर्म बताएंगे, सर्च करें आप अगर आपको नहीं पता है तो IMPS इज मॉनिटर्ड बाय NPCI। तो यहां पर ये सब चीज बहुत छोटा छोटा चीज है, लेकिन इससे पूछ से आपसे UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है और आपसे गलती करा सकता है। इसके बारे में आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि दीज आर बेसिक्स अबाउट बैंकिंग। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट
Question: Consider the following statements about Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA). शॉर्ट फॉर्म में हम इसको अपीडा बोलते हैं, APEDA। इसका फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पर इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट एपीडा। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एपीडा कम्स अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। द सेकंड स्टेटमेंट इज एपीडा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एग्रीकल्चरल and Processed Food Product Export Development Authority Act passed by the Parliament in December 1985. And the third statement is APEDA has been entrusted with the responsibility of export promotion and development of fruits, vegetables and their products only and not the meat based products. यानी थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि APEDA को इंटरेस्ट किया गया है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स ओनली एंड मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स में जो है वो APEDA इंटरवीन नहीं करती है। तो क्या आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ऑप्शंस गिवन आर ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 और नन ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जल्दी से सोचिए और बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ओनली 1। अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट 1 क्यों गलत है? क्योंकि अपीडा जो है कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब आपको देख के लग सकता है कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इज समवॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर बट इट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए यूपीएससी भी इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। इस तरह से के चीजों में अगर लोग ने एस्पिरेंट्स ने डेप्थ में नहीं पढ़ा है तो वो इस क्वेश्चन को इजीली गलत कर सकते हैं, क्योंकि उनको लग गया हो कि दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एपीडा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन December 1985. Now APEDA is mandated with the responsibility of export promotion and development of the following scheduled products: fruits, vegetables and their products, meat and meat products। तो यहां पर आप देख रहे हैं मीट और मीट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट का भी काम अपीडा को दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स इस पर ही जो है वो अपीडा करती है। लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जिसके एक्सपोर्ट प्रमोशन में अपीडा काम करती है। प्लीज गूगल सर्च अबाउट अपीडा और इनके जो ज्यूरिसडिक्शन के बारे में देखिए, किस प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट प्रमोशन करते हैं। थोड़े से डेप्थ में पढ़िए, तब जाके आपको मजा भी आएगा और अगर यूपीएससी में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पेमेंट बैंक के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। चलिए हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट पेमेंट बैंक इन इंडिया। द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन इज अ पेमेंट बैंक इज अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ बैंक दैट परफॉर्म्स ओनली द लिमिटेड बैंकिंग फंक्शंस परमिटेड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. The second statement is a minimum of 45% of its demand deposit balances must be invested in statutory liquidity ratio SLR eligible government securities or treasury bills with maturities of 1 to 1 year. The third is they can help with money transfers as well as sell insurance and mutual funds. They can issue ATM debit cards and credit cards. तो जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट पेमेंट बैंक्स इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है ओनली 1। अगेन यहां पर दो स्टेटमेंट जो है वो गलत है और वो दो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। अब मिनिमम ऑफ 45% नहीं होगा, मिनिमम ऑफ 75% ऑफ इट डिमांड डिपॉजिट बैलेंसेस मस्ट बी इन्वेस्टेड इन SLR एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए पेमेंट बैंक इसको रजिस्टर किया जाता है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, लाइसेंस अंडर सेक्शन 22, इसको लाइसेंस मिलता है अंडर सेक्शन 22 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये गवर्न होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर ही। इसके अलावा जो डिफरेंट एक्ट्स है, आरबीआई एक्ट, फेमा एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, सब चीज जो है इस पर अप्लाई होता है। ये भी जो है, अब ऐसा नहीं है कि ये पेमेंट बैंक छोटे सा बैंक है तो ये सीआरआर मेंटेन नहीं करेगा, कैश रिजर्व रेशियो इसको मेंटेन करना पड़ता है। एसएलआर कोटा का जो एसएलआर सिक्योरिटीज है वो भी इसको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन यहां पर क्या है, द लिमिट इज 75%, नॉट 45%। 75% जो है डिमांड डिपॉजिट का दे हैव टू स्टोर इन फॉर्म ऑफ एसएलआर सिक्योरिटीज। तो यहां पर आपको
समझ लिए, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो कि एलिजिबल है टू बी यूज्ड एज SLR सिक्योरिटीज, तो उसमें इनको इन्वेस्ट करना है। इसके बाद देखिए क्या है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि जो भी कंपनी आ रही है पेमेंट बैंक के लिए लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, उनका मिनिमम पेड अप कैपिटल ₹100 करोड़ होना चाहिए और इनिशियल इक्विटी एटलीस्ट 40% फॉर द फर्स्ट 5 years। कुछ रिक्वायरमेंट्स है पेमेंट बैंक बनने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है, पेमेंट बैंक का मतलब है कि दे कैन नॉट लेंड लोन्स, एनी टाइप ऑफ लोन्स वो लेंड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स लेते हैं। अब यहां पर देखिए एक चीज होता है कि इनको ये पावर मिला है कि वो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ बिजनेस। इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड जो है वो किसी का बैंक का बिजनेस होता है तो वो कर सकता है, लेकिन वो डेबिट इशू कर सकते हैं, डेबिट ATM कार्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि पेमेंट बैंक कैन नॉट गिव एनी काइंड ऑफ लोन, और क्रेडिट कार्ड क्या है, एक तरह का लोन है, तो इसी कारण क्रेडिट कार्ड पेमेंट बैंक इशू नहीं कर सकती है। इसके अलावा कुछ और रेस्ट्रिक्शंस है कि 1 लाख तक की डिपॉजिट ले सकती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। रीड अबाउट डिफरेंशिएटेड बैंक, जिसमें पेमेंट बैंक होता है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स होता है, इसके बारे में आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी होना चाहिए। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर केप्ट इन कंसीडरेशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हमारे कंट्री में जब भी MSP या मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिटरमाइन किया जाता है तो नीचे दिए हुए फैक्टर्स में से किसको किसको कंसीडर किया जाता है। द फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, सेकंड इज प्राइस पैरिटी बिटवीन क्रॉप्स, थर्ड इज इंपैक्ट ऑन लिविंग कॉस्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन द ऑप्शंस गिवन आर ओनली 1, ओनली 2, all 3 or none of them. This is a relatively easy question. We have read a lot of times about MSP in our mains answer also and in prelims questions also. जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है all 3. All of 3 are considered while determining the MSP. अब आपको जल्दी से बताना है कि MSP हमारे यहाँ कौन डिसाइड करता है। We have read a lot of times CACP, that is Commission for Agriculture Cost and Prices. अब आपसे पूछा जा रहा है कि whether this is a statutory body or not. ये आप बताइए कि CACP statutory body है या नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि these following factors are taken into consideration while determining the MSP for any crop. यहाँ पर क्या है, cost of production, changes in input prices, input output price parity, trends in market prices, demand and supply, intercrop price parity, effect on industrial cost structure, effect on cost of living, effect on general price level, international price situation को भी देखा जाता है, parity between prices paid and prices received by the farmers, and effect on issue prices and implication for subsidy. There are a lot of factors that are taken into consideration while determining MSP. तो आपको अगर मैक्सिमम अगर आप देख के बता पा रहे हैं कि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं किसी भी क्रॉप के MSP डिसाइड करने में, आपको एक बार देख लेना है, बहुत जरूरी नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन याद रखें, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द MSP फॉर एनी क्रॉप। चलिए द लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट और द RBI टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी इज स्लाइडिंग। ठीक है, आपको स्लाइड कर रहा है इंडियन रूपी, तो उस समय गवर्नमेंट जो है वो मोस्ट इन सब सारे स्टेप्स में से कौन सा स्टेप जो है वो लीस्ट लाइकली होगा जो कि गवर्नमेंट ले। यहां पर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड promoting exports, encouraging Indian borrowers to issue rupee denominated masala bonds, C is easing conditions relating to external commercial borrowing and following an expansionary monetary policy. तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, जिस समय RBI जो है वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए स्टेप्स लेती है। ठीक है, जैसे उसमें रेपो रेट घटा सकती है, ठीक है, और भी डिफरेंट तरीका होता है जिससे वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर सकती है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इंडियन रूपी जो है वो स्लाइड कर रहा है, तो इन केस में अगर आप मनी सप्लाई बढ़ाते हैं तो वो फर्दर इन्फ्लेशन को एक तरह से देगा, एक तरह से आप बोल सकते हैं इन्फ्लेशन का चांसेस बढ़ेगा, प्लस जो विजावी डॉलर जो वैल्यू है रूपी का वो फर्दर और डिटोरिएट करेगा। आपको अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा मनी सप्लाई अगर आपके पूरे इकोनॉमी में बढ़ जाता है तो विजावी डॉलर जो है रूपी और स्लाइड करता चला जाएगा। तो दिस इज द लीस्ट पॉसिबल थिंग दैट द RBI विल डू व्हेन द वैल्यू ऑफ रूपी इज स्लाइडिंग। इसके अलावा अगर आप पहला देखेंगे तो कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, ये RBI बिल्कुल कर सकती है। बताइए, क्योंकि इससे हमारा इंपोर्ट बिल घटेगा। इंपोर्ट बिल घटेगा तो क्या हो सकता है कि हमारा जो करेंसी स्लाइड कर रहा है वो थोड़ा सा उसमें कमी आने को देखने को मिलेगा, तो ये तो ले ही सकता है। लेकिन इस आपसे पूछा गया है कि नॉट मोस्ट लाइकली, जो
नहीं लेगी आरबीआई, तो वो कौन सा होगा, फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसी कारण ये स्टेप जो है डिजास्ट्रस हो जाएगा इन केस जब हमारा रूपी जो है वो स्लाइड कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे इसके बाकी जो भी स्टेप्स है दे आर मोस्ट लाइकली टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड आरबीआई। तो यहां पर जो है हम लोग समझ सकते हैं एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन डी, फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमने यहां पर कुछ क्वेश्चंस देखा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, और इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए प्रीलिम्स में लाते रहेंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस 5 क्वेश्चंस डेली टिल प्रीलिम्स। अभी आप मेंस पे फोकस करिए, आप मेंस के आंसर राइटिंग करिए, हमारे साथ भी कर सकते हैं, हमारा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप डेली आंसर राइटिंग करेंगे तो उससे आपका डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा, और एट द सेम टाइम आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करके प्रीलिम्स के क्वेश्चन के टच में रह सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।